Assalamu alaikum, Anil. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam, Amer. How are you? I'm good. I'm good. So basically, No the main worries. the main idea of having these sessions is to get as much industry professionals on a single platform where we can discuss about their growth plan. उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट करा था, सो अदर पीपल विल हैव एन आइडिया कि ठीक है यार, अगर मनाहिल ये चीज़ कह रही हैं और उन्होंने यहाँ से स्टार्ट Yeah. करा, दे कैन ऑल्सो फॉलो दो सेम थिंग। और समटाइम्स रियलिटी इस तरीके से होती है, जब कोई भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल उस इंडस्ट्री के अंदर होता है तो उसको उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है उस इंडस्ट्री के बारे में। So before we start Mm. the conversation, I'll be happy if you can introduce yourself and tell me about yourself. क्या चल रहा है, how's life, how's everything, and then we'll start the session. Sure, sure. So first of all, thank you so much, Umair, for having me. When you even reached out to me, I was really glad to know about this because I love, coming across such opportunities. Jahan pe you can actually share your experiences with others as well, and others also get to learn about the kind of experiences you go through, so that if you go through any mistakes, so at least दूसरे लोग जो अभी उस stage से go through करने वाले हैं वो उनको repeat ना करें. Hmm. So, just to start off, for the people who do not know me, I'll just briefly introduce myself. My name is Manahil Nadeem, and I'm basically working on the brand management side. Wider umbrella is marketing, obviously. So I'm a marketer. I'm a brand management professional as well. And this is the field I have been working in since the last 3 years, and I plan to work on and polish my expertise, my skills through within this field throughout the upcoming years as well. Fair enough. So, moving forward, let's start from like now you are in marketing, so you know much better than that. But Mm, let's discuss about care how's this decision made? क्योंकि mm, being a millennial, ठीक है, yeah, it's not like कि हमारे पास ज़्यादा opportunities होती थी। हम ज़्यादातर या तो we want to become our dads or our mom want us to become doctors or engineers. So yeah. let's start from the beginning. So you took bachelor's in social International relations, yeah. international relations. Okay, Yeah, international relations का student, it's more likely work in some other field. Okay, marketing yeah. is not that specific domain when you're doing international relations. So why you Yeah. choose international relations, and at what time do you realize कि नहीं यार, this is something that I wanted to pivot and I wanted to move towards the marketing side? Okay. So this has been quite a journey, I must say. So basically, speaking about my educational qualifications, that started off with O and A levels. I had a business as in commerce related subjects. Then I also had a touch of media up until A levels. So as soon as my university started, basically both my brothers had done their bachelors in media sciences. I wanted to pursue that as well, but how it goes, like within Pakistan especially, parents are of the opinion that girls should opt for a profession जिसमें timing constraints का भी issue ना आए और ये सारी Mm, चीजें भी देखनी पड़ती हैं. So and obviously both of my brothers were, how that saying goes, never keep all your eggs in one basket. So they wanted me to opt for a different field rather than media sciences. I wasn't interested in BBA because numbers वगैरह और ये सारी चीजें देख के एक्सेल शीट्स आज भी मुझे ना मेरा दिमाग अलग तरीके से वायर्ड है. मैं ये नंबर्स एक्सेल शीट्स आई एम नॉट इनटू ऑल ऑफ दैट. So then I opted for BBA की option चली गई, media की option चली गई. Then I opted for social sciences. में social sciences में IR का major लेना was, you can say, to some extent मेरा उस वक्त interest भी था international relations में. And I had been somebody जो रोज सुबह उठ के news देखना. I liked remaining well aware about what had been happening in my surroundings. BBC देख लिया, CNN देख लिया, अपनी न्यूज देख ली, what's going on in the world affairs में interest था. So then I opted for international relations, and वहाँ पे ये था कि I also connected with a few of my seniors. तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आयर करके जरूरी नहीं है कि आप जो है ना पॉलिसीज में, पॉलिटिकल अफेयर्स में ही इन हो, या आप गवर्नमेंट जॉब करो या CSS करो. यू कैन ऑल्सो opt for diversified fields, as in आप HR में भी step in कर सकते हो. And basically there are many different avenues that open up for you. And that is what then luckily happened as well when I started off my bachelor's in international relations. So what I saw was that I basically studied a very diversified field of courses. Just may we touched bases upon sociology, psychology, political sciences, then also a mix of different languages. It was
you can say a roller coaster ride. But I think back then, agar mujhse us waqt koi पूछता, I thought that was the best ever decision made in my life, right? So after I basically ended my bachelor's, मेरा aim ये था कि मैं consulates में embassies में apply करूंगी and मुझे interview call आएगी, I'd be shortlisted and मेरी life set है. And that is what I basically plan to do as well. As soon as I graduated, मैंने रोज सर्च करना स्टार्ट किया कि किस कॉन्सुलेट की किस एम्बेसी की जॉब ओपनिंग आ रही है एंड आई जस्ट यूज टू अप्लाई ऑन दोज. अब एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 मंथ्स 4 मंथ्स डाउन द लेन, मैंने क्या नोटिस कर रही थी कि आई हैड बिन अप्लाइंग फॉर दीज पोजीशंस अपीयरिंग अप to different consulates, embassies, but what was you either get an offer or you get rejected. मेरे साथ सिनेरियो ये हो रहा था कि मुझे all in all कोई रिस्पॉन्स कोई कॉल ही नहीं आ रही थी, which obviously gets pretty demotivating at one point in time. तो एनी हाउ मैंने उसको ऑब्वियसली आई एम अ फर्म बिलीवर दैट यू शुड नेवर लूज होप्स एंड यू शुड स्टे मोटिवेटेड अंटिल यू गिव इट योर बेस्ट. तो मैंने 1 साल तक यही प्रोसेस चलता रहा कि आई केप्ट ऑन अप्लाइंग फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज दैट वर बेसिकली अराइविंग टू मी थ्रू डिफरेंट कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज. बट होता ही था, एक पोजीशन आती थी और उस पर मोर देन 1,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करके बैठे हुए होते थे. हम्म, मुझे तो थ्रू आउट द ईयर कभी किसी कॉन्सुलेट एम्बेसी से इवन इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई कि मैं इंटरव्यू देने जाऊं और उसके बाद मुझे पता चले कि मेरी सिलेक्शन हुई है कि नहीं. सो हम्म, थ्रू आउट दैट ईयर द एंटायर ईयर हैड बिन सो डिमोटिवेटिंग फॉर मी एंड इट वाज बेसिकली एन आई ओपनर एज वेल. हम्म, After that 1 year, what I saw was कि यार my peers, my basically my classmates and everybody was doing very well in their lives. कोई जो है वो अपनी marketing की job में बैठा हुआ है, कोई managerial level पे लग चुका है, किसी ने अपना business start कर दिया, कुछ ने CSS कर दिया. अच्छा, I was pretty sure कि CSS तो नहीं करना because to me CSS was a pretty demotivating process again because I had seen my friends attempting for CSS at a stretch of 2 to 3 years. उसमें होता ये था कि हार्डली 5% लोग पास आउट करते थे एंड उसमें से भी जॉब एलोकेशन का कोटा इवन मीगर देन दैट था. आई थिंक अराउंड 1.5% और 2%. तो either you had to be way lucky, more lucky enough than the others to land up in those job opportunities as well. तो एंड मेरे पास वो 1 साल वेस्ट करने के बाद मजीद टाइम नहीं था टू वेस्ट ऑन एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो मैंने कहा यार अब कुछ ना कुछ करना है एंड आई नीड टू बी stepping up into a career which is also professionally sound and I needing an earning source as well. And होता ना आप दूसरों को देख के डिप्रेशन में भी जाने लगते हो कि यार वो he is doing so well, she is doing so well, तो मैंने कब कुछ करना है. You हम्म, also have that urge to become productive ना. So that is when after a year basically I graduated in 2020. So by the end of 2020 I realized that nahi, this is it, I need to change my career path and I need to redefine the strategies through which I'm looking at this entire thing. हम्म, So that is when an opportunity came up at one of the leading banks and I applied for that opportunity and it was basically within the compliance department. So I took up that opportunity or मैंने उस पे I worked there for around 3 months. But you know how the compliance departments are pretty dry and as I हम्म, earlier mentioned कि I was a kind of person कि मुझे Excel sheets, numbers ये सब कुछ मुझे बहुत dry लगता था. But मैंने कहा चलो let's give it a try. Banking field है and my parents were also really optimistic about this particular opportunity कि यार females के लिए banking बहुत secure industry है. अब 9 to 5 जॉब होती है, आप टाइमली घर आ जाते हो, सैलरीज भी अच्छी होती हैं, सिक्योर जॉब होती है, आपको लोन्स मिल जाते हैं, बेनिफिट्स पर्क्स बहुत होते हैं. तो मैंने कहा लेट्स टेक इट अप. मैंने 3 महीने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया बट माइट बी बिकॉज वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट था एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट जनरली काफी ज्यादा रफ एंड ड्राई होता है. सेट हम्म, पैटर्न्स होते हैं, वही टेम्पलेट्स हैं, आप साल साल उन्हीं टेम्पलेट्स पे काम कर रहे हो, वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो. तो बहुत यू कैन कॉल इट अ प्रिटी मोनोटोनस जॉब. 3 महीने तक मैंने की, उसके बाद ना मैं मेंटली ड्रेन आउट होने लगी कि मुझे लगा यार जॉब, आई पर्सनली बिलीव जॉब आपका प्रोफेशन, आपका करियर ऐसा होना चाहिए कि यू लुक अप टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे इन योर लाइफ, आपको मजा आए, यू शुड एंजॉय वेकिंग अप एंड गोइंग टू योर वर्क प्लेस, योर जॉब, जो भी आप करते हो आप उसको एंजॉय करके करो. दैट इज ऑनेस्टली द बेस्ट थिंग दैट वन कैन एक्सपीरियंस इन लाइफ. तो फेयर तीन इनफ. महीने मुझे ये या तो मतलब सो आपकी तीन राइट, महीने में आपकी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी राइट ग्रेजुएशन के अगले 2 साल तक इट्स या नॉट दैट स्टेबल.
ठीक है। No, no, not at all. Struggling phase यहाँ चल पे रहा था. आई वांटेड टू आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन कि Hmm. कि हर किसी के अंदर ना इतना इतना पोटेंशियल नहीं होता सस्टेन रहने का, Hmm. ठीक है। Yeah. क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, पाकिस्तान में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, Hmm. यू वांटेड टू अर्न एंड यू नीड टू अर्न, इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, ठीक Hmm. है। Hmm. ठीक है, Yeah. मैं चाहती हूँ काम करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट, लेकिन मुझे ज़रूरत है Yeah. काम करना क्योंकि एवरीवन नीड्स मनी, एवरीवन नीड्स टू हैव देयर ओन एक्सपेंस। थोड़ा सा Yeah. मुझे ये बताओ कि you got your first proper job in November 2022, right? When you Yeah. when you joined Exactly. when you joined Daraz and you graduated in Yeah. 2020, right? After like Exactly. almost 2 years. मुझे सिर्फ पहले ये Yeah. बताओ कि how you stay motivated या what, Hmm. क्योंकि 2 साल इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ये बहुत कम Yeah. ऐसा चांस होता है कि यू ग्रेजुएटेड इन 2020 और 2 साल तक आप लिटरली कुछ ना कर रहे हो, ठीक है। और Yeah. अगर कर भी Hmm. रहे हैं तो यू डोंट लाइक इट। उन 2 साल Yeah. को किस तरीके से गुजारा, क्या लगता है आपको कि अगर कोई बंदा उस सेम पाथवे से गुजर रहा है तो उसको क्या रूटीन रखनी चाहिए, किस तरीके से, कोई टिप देना Hmm. चाहोगी क्या इस तरीके से आपने उन चीज को देखा है? क्योंकि आफ्टर यू क्रॉस दैट बार, जब आपकी जॉब लग जाती Hmm. है तो फिर तो शायद आपको अब कभी याद नहीं करते उस टाइम को कि चलो ठीक है यार दो Yeah. साल थे, लेकिन उस टाइम में आपको Hmm. क्या लगता है, क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे या क्या आपको लगता है मोटिवेट रहने के लिए करना चाहिए? Hmm. So basically, you're very right, and I would completely agree with you on this. It hadn't been easy for me, and 2 years कहने में छोटी चीज लगती है, लेकिन 2 साल बहुत लंबा time होता है, right? And there were days when I actually woke up, plunging into depression. समझ नहीं आता था क्या करना है लाइफ के साथ क्या नहीं, बस दिल करता था सोते ही रहो क्योंकि उठ के करना ही क्या है, कुछ करने का है ही नहीं. But then there came a point in my life जब मैंने सोचा कि यार मतलब life is the greatest gift of God that there can be. तो आप उसको इस तरीके से वेस्ट करो तो ये तो वो एज दे से कि आप अनथैंकफुल हो रहे हो एक तरह से, ठीक है। तो आपको अब मुझे यही था कि आई नीड टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज अगर मैं इसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होती रही ना डिप्रेशन में और ये तो थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि एक तो मैंने थोड़ा सोच ली, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलना जुलना स्टार्ट हुई, मैंने उनसे डिस्कशन की कि यार इफ एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे, कोई रिमोट अपॉर्चुनिटी हो, नॉट नेसेसरली फुल टाइम जॉब हो, जो भी हो, do pass it on to me. Matlab, I would just want to do anything to be productive at this point in time, right? हम्म। Other than that, मैं ये जरूर mention करूंगी, and this might be a useful tip for the young professionals entering into the industry, that LinkedIn is a very important platform. हम जितना time I think ये Instagram, आजकल की जनरेशन स्पेशली इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक पे जितना टाइम देती है ना, आई थिंक हाफ द टाइम इसका और एफर्ट्स वो लिंक्डइन में डाल लेना, तो एक्चुअली दे कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट. अब मेरी भी प्रोफाइल जैसे एनी अदर जेंसी मिलेनियल की प्रोफाइल होती है, वही थी कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही, एक अकाउंट बना हुआ था बैक इन कॉलेज डेज, लेकिन वो फुली निग्लेक्टेड मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल था, और उसमें एज सच मैंने कुछ अपडेट भी नहीं किया हुआ था क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ था ही नहीं अपडेट करने को. देन आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसने मुझे गाइड किया कि यार नहीं, इस तरीके से नहीं होता, तुम्हारे पास तुम्हारी थीसिस है, मेरे पास तब तक एक दो इंटर्नशिप्स भी थी, तो उसने कहा कि जस्ट वर्क ऑन योर प्रोफाइल, इंटर्नशिप्स के का भी वहां पर प्रॉपरली अपडेट डालो कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग दोज इंटर्नशिप्स. अपनी प्रोफाइल को मेक योर प्रोफाइल साउंड इनफ कि इफ इवन एनी काइंड ऑफ रिक्रूटर, एक्स वाई जेड रिक्रूटर विजिट्स योर प्रोफाइल, तो एटलीस्ट उनको ये ना लगे कि यार कोई फेक प्रोफाइल है, पता नहीं इसको किसी ने सालों से देखा भी है कि नहीं. सो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना शुरू किया. उसके अलावा मैंने क्या किया टू बेसिकली कम आउट ऑफ दैट स्टेट दैट आई वाज प्लंजिंग इनटू. हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है. माय हॉबी वाज रीडिंग, ठीक है, मुझे कुछ शोज वगैरह देखने में या इतना मूवीज देखने में इंटरेस्ट नहीं होता. आई लाइक टू रीड. तो मैंने बहुत सारी बुक्स ले आई. मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक कोई जॉनरा नहीं, बट आप ये कह लीजिए कि कुछ ह्यूमरस जॉनर से रिलेटेड बुक्स थी, कुछ फिक्शन थी, कुछ नॉन फिक्शन थी. सो आई स्टार्टेड रीडिंग इन माय फ्री टाइम एज वेल. रीडिंग हेल्प्ड मी अ लॉट. एंड हर किसी की कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो अगर वो करे ना, तो उससे दे एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग बेटर, दे फील पॉजिटिव, एंड वो पॉजिटिविटी जो है ना वो बहुत जरूरी होती है.
साइड बाय साइड मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना शुरू किया एंड द अपॉर्चुनिटी आई मेंशन टू यू अर्लियर अबाउट बैंक वाली, देन आई एक्चुअली बैक दैट अपॉर्चुनिटी थ्रू लिंक्डइन ओनली। मैंने लिंक्डइन पे वन फाइन डे में स्क्रॉल रोज करती थी जॉब्स का वो जो टैब होता है, तो उसमें मैं आई सॉ दैट अपॉर्चुनिटी पॉपिंग अप एंड मैंने उस पर अप्लाई किया एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट बैंक एंड उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ये पोजीशन है, वी वुड लाइक टू इंटरव्यू यू। अच्छा, हम्म। वहाँ ये वो टाइम है कि इसमें ऑलमोस्ट कोविड से थोड़ा सा पहले का टाइम है, तो मेरा इंटरव्यू और सब कुछ ऑनलाइन हुआ था, बट देन इट वाज एन ऑफिस जॉब। तो मैं ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी एंड आई थिंक विद इन वन वन वीक ओनली। तो यहाँ पे वो भी एक आई एम ऑल्सो फर्म बिलीवर ना कि जो आपकी किस्मत में होता है ना वो आपको मिलना होता है, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट? हम्म। सो विद इन वन वीक ये सारा कुछ हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, आई थिंक आई पास थ्री राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड जब वो फाइनल राउंड हुआ उसके बाद आई गॉट द जॉब एंड उसके नेक्स्ट वीक में मेरी ज्वाइनिंग हो गई एंड दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड। बट वही है कि 3 महीने जब मैंने वहाँ काम किया ना, तो दैट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओके, just getting the job, being productive is not the game here. You need to basically step into a career, a pathway जहाँ पे आप एक्सेल करो, जो आपको एक्साइट करे, जो आपको आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, सो दैट आप रोज जब जॉब पे जाओ तो आप ये ना सोचो कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया, या आप उससे क्या कहते हैं, आप इतना वो डन हो चुके हो कि आप उसमें कोई एफर्ट्स ही ना डाल पाओ। Fair सो enough. तीन या Fair enough. You have you. That was the main idea of asking this. Is basically um, stay motivated. It's basically like a combined effort. It's not like या डेफिनेटली डेफिनेटली if you do something, you will get a job or not. Maybe you will, but it's more likely consistency. Number one. तो एक तो सबसे अच्छी चीज आपने ये फॉर बताई श्योर कि try to make yourself as productive as you can. या Throughout your experience, the first thing that I really wanted that catches my attention and that I wanted to have a discussion on कि your overall experience is more likely a chart. ठीक है, you या have done different different things, सही है, तो I या wanted to know few things, सही है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जिस लड़की को 2 साल बाद नौकरी मिली, 3 महीने की या इंटर्नशिप के बाद उसने सोचा कि भाई ये तो नहीं होगा, देन या यू मूव टू एचआर। ठीक है, या यू हैव डन एन इंटर्नशिप फॉर 3 मंथ्स एंड आई एम प्रीटी मच या श्योर फिर यू मूव टू दराज। ठीक है, या मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जब आप 2 साल बाद आपको जॉब, ये मेंटालिटी मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि ना लोगों के अंदर ना इतने गट्स होते नहीं है इस चीज को करने के। ठीक है, नंबर वन मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इट्स लाइक व्हेन पीपल इन पाकिस्तान गेट अ जॉब दे विल डू एनीथिंग टू बी इन दैट जॉब। दे डोंट रियलाइज इधर वो उनके लिए अच्छा है या नहीं है, ये दे डोंट रियलाइज कि वो काम अच्छा चीज, वो उससे कोई चीज प्रोडक्टिव कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट वो करते हैं क्योंकि उनको पैसे के लिए करने होते हैं। You या started off with a bank, then you moved to human resource, then you moved to Daraz as a communication strategist. या After 1.5 year, you moved to another place, ठीक है, as या a training and quality assurance, totally different या thing. And या then now you are working in Oran as a brand manager, ठीक है। या पहले मुझे ये बताओ कि यार क्या माइंडसेट होता है व्हेन यू स्विचिंग अ जॉब। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं कि अगर किसी बंदे की 2 साल बाद जॉब लगती है ना, तो वो कभी भी ये सोच ही नहीं पाता कि ठीक है 2 साल बाद जॉब लगी वो एक अलग बात है, लेकिन जॉब ऐसी होनी चाहिए जो मुझे पसंद हो, नंबर वन। नंबर सेकंड, व्हाट आर द की पॉइंटर्स दैट यू थिंक यार अब मुझे लगता है मुझे जॉब स्विच कर लेनी चाहिए। ठीक है, आप किस तरीके से इवेल्युएट करो, क्योंकि एक बंदे की इवेल्युएशन ये होती है और हर बंदे का ट्रैक पाथ वैसा चले जरूरी नहीं है। ठीक है, आप या एसोसिएट डेफिनेटली लगे, आप एसोसिएट लगे, आप एग्जीक्यूटिव हो गए, आप एसोसिएट लगे एक्स वाई जी करते करते, लेकिन आप एक ही सेम फील्ड में हो। ठीक है, या इन योर कैरियर पाथवे यू हैव डन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, या तो मेरे कुछ सवाल आते हैं। पहला तो ये कि यार एचआर आपसे जरूर ये पूछता है कि भाई आप इतना स्विचिंग कर रहे हो, वो भी अलग अलग फील्ड में। डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली इसका जवाब जानना है मुझे। दूसरा ये, क्या माइंडसेट है, व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल प्लान। डू यू थिंक यू रीच टू अ पॉइंट के जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज द फील्ड दैट आई वांटेड टू परस्यू इन, या अभी ये भी एक्सप्लोरेशन फेज है, कल को हम देखेंगे कि मनाइल इज डूइंग समथिंग एल्स, बिकॉज इट या इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। ठीक है, या इसमें इसमें बहुत सारे लोग होते हैं वो नौकरी को अपनी जिंदगी बना लेते हैं क्योंकि दे जस्ट वांटेड टू अर्न मनी। या नेवरदलेस वो उनकी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है, वो उनकी फिजिकल हेल्थ खराब कर रही है या नहीं। ठीक है,
थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। यू हम्म। वेंट टू दराज, उससे पहले एचआर क्यों, फिर दराज क्यों, दराज हम्म। से फिर एक और जगह क्यों, और अब अगर हम्म। उड़ान में, तो और हर जगह यू हैव स्विच टू डिफरेंट जॉनरास, ठीक है। या। इज इट हेल्पफुल, हम्म। इज इट अ बैड हम्म। डिसीजन, इट इज अ गुड हम्म। डिसीजन? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना हम्म। ये मसला होता है, वो इसकी वजह से चेंज ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई हम बिल्कुल। एक ही चीज करेंगे, पता नहीं हम दूसरी चीज करेंगे, हमसे होगी नहीं होगी, वाइस वर्सा, क्या चीज है। तो हम्म। आई वांट टू स्क्वीज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू टेल देम कि यार क्या आप हम्म। सोच के करते हो, क्या फैसला होता है, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, या जैसे आपने कहा, सबसे ज्यादा बड़ा जो ऑब्स्टिकल इस सब में मुझे भी फेस करना पड़ा ना, दैट इज द एचआर डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई गो टू। बिकॉज वो आपकी सीवी देखते ही ये असम्पशन ले लिया जाता है कि आइदर यू आर अ जॉब हॉपर और यू आर अनइंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट उठ के आप एक जॉब पकड़ते हो, आपको समझ आई नहीं आई, आप बोलते हो नहीं भाई अगले पे चलो। So that is the most tricky part, जहाँ पे you actually need to prove it to the HR departments कि नहीं, सिर्फ इसलिए ही कोई job change switch नहीं plan करता कि वो simply uninterested है, या वो ऐसी किसी fun factor के लिए ये नहीं करता। Obviously there's a thought process behind it, and for टू स्टार्ट ऑफ मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि जहां से आपने बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड बीन लकी इनफ कि मेरा जो जॉब करने का ऑब्जेक्टिव था ना, सबके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ का होता है कि एक्चुअली दे आर दी सोल इनकम अर्नर ऑफ देयर फैमिली, या लेट्स सपोज उनको अपनी एक्सपेंसेस इनकर करनी होती है। मेरे केस में being very honest ऐसा नहीं था, which is why I think I was able to experiment throughout these years कि मेरे पे कुछ इतनी ज्यादा responsibilities नहीं थी। Obviously मुझे था कि I need to earn for myself. Everybody wants to become independent nowadays. In fact, women actually want to become independent, and it's a very good thing. I feel women should be more independent than men in today's society, for a better survival as well. So I wanted to become independent, but that wasn't the sole purpose that I had back then. I wanted to get into something which excited me, जहाँ पे मुझे लगे कि I'm learning a new thing with every passing day, and I enjoy going to my work. मेरा skill set enhance हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बैचलर्स में जिस पॉइंट पे मैं तब थी, आज भी मैं उसी पॉइंट पे हूँ। एंड मनाहिल की लाइफ में शी इज नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, कोई स्किल डेवलप नहीं हो रहा, उसका जो स्किल सेट वहां पे था वो वहीं का वहीं है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैंने बैंक की जॉब छोड़ी और मैंने दराज ज्वाइन किया, उससे पहले मेरी एचआर की इंटर्नशिप थी। सो एचआर में भी मैं गई। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मुझे एचआर की जो इंटर्नशिप मिली, दैट वाज, अब एचआर में भी ना डिफरेंट सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें मुझे इंटर्नशिप मिली दैट वाज द पेरोल डिपार्टमेंट ऑफ द एचआर। अब आप तो चूज नहीं कर सकते कि आपको कहाँ इंटर्नशिप करनी है, जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है उस टाइम आपको वहीं जाना होता है। सो वो पेरोल से रिलेटेड डिपार्टमेंट था एचआर का। वहां पे अगेन वो 1 मंथ की इंटर्नशिप थी, दैट वाजंट फॉर दैट लॉन्ग। वहां पे मैं गई तो वही प्रॉब्लम, नंबर्स, एक्सेल शीट्स, सैलरी स्लिप्स एंड एवरीथिंग। तो वो मैंने 1 मंथ कंप्लीट की। लेकिन सो अब वहां पे ये बात भी आ गई, एज सून एज आई एंटर्ड इनटू दैट ऑफिस आई न्यू इट कि दिस इज नॉट द प्लेस आई हैव टू बी एट। बट देन अगेन there are some rules as well that you need to abide by, and you should in fact। ऐसा नहीं है कि मैं अगले दिन उनको मैंने बोल दिया कि नहीं यार मैं नहीं आऊंगी। I gave it the required time। मैंने कहा 1 month की internship है, and obviously you get to learn something out of everything। Doesn't mean if that is not something of interest to you, still आप कुछ ना कुछ at the end अगर वो आपको कुछ lesson मिल रहा है, कोई learning मिल रही है, कुछ सीख रहे हो ना आप उससे, so that is you're not at loss for sure। वो 1 मंथ की मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद दराज की ये जो अपॉर्चुनिटी थी, दैट बेसिकली केम अप, एंड अगेन ये सब कुछ थ्रू लिंक्डइन हो रहा है। तो मैं इसलिए इतना एम्फोसाइज करी हूँ कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, उनको जिस तरीके से आपकी सारी जो भी करियर पाथ है, आपकी एजुकेशन है, उसको प्रॉपरली अपडेटेड रखना। एंड एक एस्थेटिकली प्लीजिंग लिंक्डइन की प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, रिक्रूटर्स एक्चुअली look after the profiles of such people जिनकी थोड़ी aesthetically appealing, professionally sound profiles होती हैं। रिक्रूटर्स के लिए ये मैटर करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एचआर सिंस लास्ट यू कैन से 7 years, 8 years, एंड दे ऑल्सो शेयर दिस एक्सपीरियंस विद अस कि हाँ यार, हम हर किसी की प्रोफाइल पे को तो व्यू भी नहीं करते हैं खोल के, राइट? एंड देयर आर मिलियंस ऑफ प्रोफाइल्स ऑन लिंक्डइन एज वेल। सो व्हेन आई जॉइंड दराज, वहाँ पे ये था कि
द डे आई एंटर्ड इनटू दराज ना, मुझे ये मेरे माइंड से मुझे ये मैसेज मिल गया था कि ये वो जगह होगी जहां से अगर कोई मैं रिटायर होके निकलूं तो निकलूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। द काइंड ऑफ जेडी आई हैड, द काइंड ऑफ पीपल आई मेट, द काइंड ऑफ वर्क कल्चर द प्लेस गेव मी, बिकॉज देन अगेन सिर्फ जेडी मैटर नहीं करती, सिर्फ सैलरी मैटर नहीं करती, आपका वर्क कल्चर मैटर करता है, आपके लाइन मैनेजर मैटर करते हैं, फिर यस टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपकी जेडी मैटर करती है, आपकी सैलरी, हम्म। आपका ओवरऑल पैकेज मैटर करता है, कंपनी का नाम बहुत मैटर करता है फॉर योर रिज्यूमे, फॉर योर प्रोफाइल के आगे जब आप कहीं और जॉब मांगने जाओ तो ऑब्वियसली अगर मेरी प्रोफाइल, मेरी रिज्यूमे पे कोई छोटी कंपनी का नाम लिखा हुआ है एज कम्पेयर टू लेट्स सपोज कोई एफएमसीजी का नाम लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, फैक्ट्स बीइंग फैक्ट्स। तो अब दराज में मेरी बहुत डायनेमिक जॉब थी, लाइक आई वाज अ पर्सन हु वाज क्लोजली इन्वॉल्वड इनटू कैंपेन्स लाइक 11-11 12-12, महंगाई का भूत, एंड देवर दराज में देर यूज्ड टू बी, मतलब एवरी डे यूज्ड टू बी अ वेरी न्यू बिगिनिंग दैट आई यूज्ड टू look into के Then why do you पिछले then why do you switch? That's my main idea. अच्छा। क्योंकि this is the very few thing. क्योंकि I हम्म also work in Daraz way back, हम्म जब आप थे उससे हम्म बहुत पहले। बट यही मेरा पॉइंट है जहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि दिस इज द एक्साइटमेंट व्हेन यू गेट टू अ जॉब, जब आपको लगता हम्म है कि इट्स अ ड्रीम जॉब। हम्म अभी आपने या बोला कि यू व्हेन यू एंटर इट यू थॉट कि मैं रिटायर भी होके जाऊंगी तो यहाँ से रिटायर होके या जाऊंगी, फॉर श्योर डेफिनेटली। एंड आफ्टर 1.5 year यू लेफ्ट दराज। ठीक है, ओके सो मुझे मुझे आई मुझे मुझे हाँ। सिर्फ माइंडसेट जानना है, क्योंकि देखो क्या होता है, हम्म लोगों को ऐसा लगता है कि व्हेन पीपल थिंक ओके फाइन मनाइल इज वर्किंग इन दराज या मनाइल इज हम्म वर्किंग इन एक्सवाईजी कंपनी, ठीक है, हम्म दे हम्म जज पीपल बाय द कंपनी नेम। या फॉर श्योर ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली। दे डोंट सी इट इन अ वे कि एक पर्सनल ग्रोथ होती है, ठीक है। हम्म और हम्म जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि, मैं इसको गलत नहीं समझता, ये ऐसी चीज है या कि इट्स लाइक अ न्यू फोन, व्हेन यू बाय अ न्यू हम्म फोन यू लाइक इट, हम्म आफ्टर अ ईयर यू डोंट डेफिनेटली लाइक इट, इफ आफ्टर 2 years you want to sell it and replace it to with someone else, या। then why did you, what point that you realize, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो कि यार इट वाज अ वेरी गुड जॉब, हम्म आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ यू रियलाइज कि नहीं, वी नीड टू मूव ऑन, व्हाट वाज द पॉइंट? अच्छा। सो आई डिड नॉट, ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, आई डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम दराज। दराज में देयर वाज दिस मैसिव राउंड ऑफ लेऑफ्स दैट हैपेंड, जिसमें द एंटायर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाज बेसिकली लेड ऑफ, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि जो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से रिटायर भी होके जाऊंगी, बट एज दे से आपका प्लान कुछ और होता है, लाइफ का प्लान आपके लिए कुछ एग्री। और होता है। या एग्जैक्टली। सो जब मैंने दराज ज्वाइन किया था इस 1.5 साल के टेन्योर में, एज सुन एज आई ज्वाइन देयर वाज अ राउंड ऑफ लेऑफ्स, बट लकीली आई वाजंट वन ऑफ द अफेक्टीज आउट ऑफ इट, बट द सेकंड वन व्हिच वाज द इवन मैसिव वन ड्यूरिंग फेब 2024, that was the one जिसमें पूरा marketing department, पूरा call center function, you might be aware of it since you've also worked at Daraz. So उस layoffs के बाद the entire thought process completely changed for me, because मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यार इस कंपनी के बाद अब मुझे कुछ और भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है, मुझे लगा मैंने सब देख लिया, बस यहाँ पे अब मैं सेट हूँ, मेरी लाइफ सेट है, मैं यहीं से रिटायर होके निकलूंगी आज से 10-15 साल बाद बट गॉड had different plans for me. तो अब जब वो ले ऑफ हुआ तो माय वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन कि यार ये क्या हो गया, आई वाज इन अटर शॉक, honestly speaking, because I wasn't expecting it to be that massive. Or obviously I felt bad for my teammates as well, my peers as well, लेकिन obviously जो आपको अपना एक personal loss feel होता है वो आपके लिए कुछ different ही आपको hit करता है. So obviously again there was a time that I plunged into depression, because ये क्या मतलब, जो मैंने सोचा था कि I have finally gotten my ideal job role, इससे better तो कुछ हो ही नहीं सकता. Now I no more had it, and it was just a matter of minutes. I got that email and I was called into the office और मुझे बताया गया था कि इस तरीके से layoffs are happening and you have been affected due to that. तो उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट डे से आई वाज अगेन जॉबलेस, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और फॉर अ गुड वीक और सो तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब मैंने क्या करना है लाइफ के साथ, क्या नहीं करना है.
So that was when I was within 2 weeks. Thankfully, God had been kind and great. मुझे offer हुई सुनोनो से job, which is you can say Qatar's food panda. वहाँ पे मैंने I joined in and it was alhamdulillah much better offer than what Daraz had offered me. तो एक ये भी जो लोगों का एक general mindset है ना, I would like to correct that कि layoffs हमेशा performance based ही नहीं होते. कंपनी के एंड से कॉस्ट कटिंग की वजह से हो सकते हैं, किसी न्यू That एक्विजिशन that की is वजह से हो that सकते हैं. is that is a very डिस्कसेबल टॉपिक, ठीक है। हम्म. पहली हम्म. चीज ये कि मेरा मेन रीजन ये था बिकॉज आई नो यू डिडंट हम्म. लीव दराज। हम्म. आई नो दराज का पूरा बैकग्राउंड फ्रॉम 2021 टिल हम्म. नाउ। हम्म. layoffs are very different, ठीक है। my main हम्म. reason of हम्म. asking that is हम्म. you started off with zero. हम्म. After 2.5 years you got a job. हम्म. हम्म. 2 years were very good, then you are या. again on that point. This is हम्म. how life it is. That is why I wanted to discuss, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप हम्म. किसी बड़ी कंपनी में पहुंच जाते हो ना, they see you in a हम्म. different way. It's या more या likely डेफिनेटली. when you are at bigger companies. I think मुझे ऐसा लगता हम्म. है it is good to work in a big company, but then it's also हम्म. in a way कि आपको realize करना पड़ता है कि maybe it will happen. हम्म. For the या last एग्जैक्टली. for the last 2-3 years, it's going to या. be very 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 rough. I या. don't I don't see it a bad way, ठीक है, क्योंकि हम्म. companies need to grow in a certain way, या ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली. sometimes companies गलत फैसले करती हैं, sometimes कोई भी हम्म. चीज हो सकती है, ठीक है। या. बट पाकिस्तान की अगर बात की जाए, सो पाकिस्तान हम्म. बेसिकली आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि या. ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी एक बहुत अच्छी जगह जॉब लग जाए तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, ठीक हम्म. है। सो हम्म. यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर स्टार्टिंग 2 years, the mid two हम्म. years are good, and then the layoff. हम्म. uh, या. what what thought process you think a layoff person should do, because nowadays for last couple of years layoffs are now becoming much more इन या कॉमन. normal, ठीक है। या. it's more likely when we discuss about बम फटना पाकिस्तान में 10 साल पहले बहुत अलग था, अब नॉर्मल है। या. या. बट ले ऑफ के बाद, ठीक है, एक क्योंकि हम्म. एक चीज होती है कि आप ट्राई कर रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही। ले ऑफ या. इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि यू नो यू आर डूइंग गुड, बट या. कंपनी डोंट वांट यू, कंपनी डोंट वांट दिस डिपार्टमेंट एनी मोर, या. ठीक है। और अब ले ऑफ बहुत सुनने में आते हैं, तो या आई डेफिनेटली. डू हैव डिफरेंट पॉइंट्स टू डिस्कस, बट लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट के व्हाट डू यू थिंक, व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट अ पर्सन शुड हैव अगर वो ले ऑफ हो जाए। Right. So, as that saying goes that गिरते हैं अच्छा सब शह सवार ही मैदान जंग में. हाँ, So, लेकिन वो तो पूरा, this can be बट वो तो basic. बहुत ही हाँ. डिबेटेबल चीज है ना, वो तो शहर Yeah. सवार नहीं, उसमें तो कंपनी खत्म हो गई, तो इट्स अ Yeah. टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा नहीं, कंपनी कंपनी खत्म नहीं हुई थी. आई वुड डिसएग्री विद डिपार्टमेंट दैट बिकॉज डिपार्टमेंट मेरे. तो खत्म हो हाँ. गया ना, हाँ. तो बेसिकली वो बड़ी अलग चीज होती है। कैसा होता है, हम्म. देखिए, मास मास ले ऑफ का, ले ऑफ में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो ये कि हम्म. जब मास ले ऑफ होता है ना, तो आप एटलीस्ट खुद से नाराज नहीं होते, आपको पता होता है कि हम्म. एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट सेम फेज। हम्म. हम्म. सेकेंडली, जब मास ले ऑफ होता है तो इंडस्ट्री में पता होता है इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस बेस्ड ले ऑफ, हम्म. ठीक है। तो अगर आप कहीं जाते हैं तो आप ये बात डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि यार, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सोसाइटी इज वेरी स्मॉल, सबको पता होता है कि यार आप तरास हैं, हम्म. आप अभी ले ऑफ हुए होंगे, एंड वाइस हम्म. वर्सा, ठीक है। हम्म. बट डू हम्म. यू थिंक इट्स अ गुड थिंग कि जब आप मास ले ऑफ में ले ऑफ होते हैं, तो आप किस तरीके से, आप हम्म. बताओ कि आपने किस तरीके से वो 2-3 हफ्ते गुजारे, या क्या आप कोई टिप्स देना चाहोगे कि ले ऑफ के बाद ये होना चाहिए, क्योंकि ले ऑफ इज अ वेरी डिफरेंट Sure. थिंग ऑफ नॉट हम्म. गेटिंग अ जॉब। नॉट गेटिंग अ जॉब इज वेरी Yeah. डिफरेंट थिंग, ले ऑफ इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। या डेफिनेटली. हम्म. अच्छा सो बेसिकली मेरा जो ओवरऑल प्रोसेस था वो ये था कि फॉर द फर्स्ट वीक ऑब्वियसली आई वाज वेरी फीलिंग वेरी लो, कंप्लीटली डाउन. प्रॉब्ली मैंने पहले दिन तो इवन आई स्किप्ड माय मील्स इवन, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो गया, मैंने इसको कैसे फेस करना, बट द की पॉइंट हियर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट you should never question your self worth no matter what, because the moment you start questioning your self worth ना, उस टाइम पे आपकी जितनी भी आपके सराउंडिंग में नेगेटिव फोर्सेस होंगी ना, वो भी और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगी एंड यू वुड बी बेसिकली आप अपना डूम्सडे खुद अपने करीब लेकर आ रहे होगे.
तो आप अगर अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करोगे ना, अब एक ले ऑफ हो रहा है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट बिकॉज आप में कोई कमी है, या यू weren't परफॉर्मिंग वेल, या आप आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट wasn't इवन इन योर कंट्रोल कि आप उसको रोक लेते हैं कुछ। सो वाई क्वेश्चन योर सेल्फ वर्थ? आपकी सेल्फ वर्थ एक जॉब, एक डिग्री का पेपर, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो यही होता है कि आपके ग्रेड्स, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके मार्क्स, आपकी जॉब्स, आपके किन कंपनी से आप एसोसिएटेड रह चुके हो, ये दीज प्रिटी मच डिफाइन अ पर्सन, जो कि ऑब्वियसली इस माइंडसेट की वजह से ही सबका एक वो बना होता है कि यार मुझे अच्छी कंपनी में जाना है, मुझे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं और ये सब, बिकॉज समवेयर अराउंड दी टेक्निकलिटीज ऑफ इट हम ही ये री कर रहे होते हैं कि यार आपकी सेल्फ वर्थ ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी। तो ऑब्वियसली व्हेन थिंग्स डू नॉट गो दैट वे, तो आपका एक जनरल रिस्पॉन्स ये होता है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ। मेरे केस में thankfully enough, for the first week I would not say कि मैंने अपनी क्वेश्चन को अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन नहीं किया, बिल्कुल डेफिनेटली किया। आई थिंक कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो वो फॉर वंस तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि यार अब क्या, मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है कि अब मैं इस कमरे में बंद होकर डिप्रेशन में पड़ी रहूंगी एंड बस इसी तरह मेरी लाइफ गुजरेगी। ऑब्वियसली there needs to be an end to this and I have to put an end to it। और ऐसे बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होना, आपको थोड़ा हिलना जुलना खुद भी पड़ेगा। You need to put in efforts and without trying, you can never say कि यार नहीं मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। So you need to give it a try। And मेरे केस में luckily ये था कि बहुत वो एक छोटा सा टाइम था जिसमें I actually started trying and मुझे actually इंटरव्यू की कॉल्स आई भी। दैट ऑल्सो रियली हेल्प मी इन reinforcing the idea कि अच्छा मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आई शुड डेफिनेटली नॉट क्वेश्चन माई सेल्फ वर्थ। बिकॉज आपकी सेल्फ वर्थ ना ये चीजें डिफाइन नहीं करती, आपका अपना माइंड सेट डिफाइन करता है। अगर मेरे माइंड में मुझे पता है ना कि यार आई एम अ केपेबल पर्सन, इफ गिवन अ चांस मैं एक्सेल कर लूंगी, मेरे अंदर वो हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज हैं, आई कैन पुट इन माई एफर्ट्स, देन ऑनेस्टली स्पीकिंग नथिंग कैन ब्रेक यू एंड कोई चीज आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती। हाँ, द प्रोसेस कैन बी डिफरेंट, मे बी मुझे 2 वीक्स में इंटरव्यू की कॉल आए एंड आई बैग अ रोल, मे बी आप 1 साल तक स्ट्रगल करते रहो आपको नहीं मिले। ऑब्वियसली वहां पे हैविंग सेड दैट डिफिकल्टी हो जाती है कि यार इतना टाइम हो गया मैं फारिग बैठा हुआ, बट देन अगेन मैं यही कहूंगी द की इज दैट नेवर क्वेश्चन योर सेल्फ वर्थ एंड यू विल सी इन टाइम्स दिस एक्चुअली डज वंडर्स कि आप यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इवन इफ नॉट, मतलब मैं ये नहीं कह रही अब आप जाके किसी कोर्सेज में एडमिशन ले लें और ये, even if you work out, you feel better physically, you go out, you become more social, meet new people, कोई anything that makes you feel positive, वो पॉजिटिविटी का एस्पेक्ट आएगा ना, तो जनरली वो आपको अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने से थोड़ा दूर लेके जाएगा। So this had been my way of actually coming out of it। and मैंने बस ये बात जो है ना मैंने अपने दिमाग में सोच ली थी कि यार कुछ भी हो जाए, वट एवर द सिचुएशन इज, आई एम नॉट सपोज टू क्वेश्चन माई सेल्फ वर्थ, क्योंकि अगर मैं वो क्वेश्चन करूंगी मैं फिर से डिप्रेशन में जाऊंगी, मुझे लगेगा आई एम गुड फॉर नथिंग। एंड एक बार मैंने ये वाला माइंड सेट एम्ब्रेस कर लिया ना, उसके बाद मैं आई विल एक्चुअली बी गुड फॉर नथिंग। Fair enough. Acha. या The last thing that I wanted to discuss is it's been like 3 years. You are working for या multiple companies. You're dealing with multiple things. ठीक है. या मुझे ये बताएं कि right now, Manahil, what do you think? What's your mindset look like? Are you ओके। someone के अब भी आपको excitement होती है jobs को लेकर, या अब आपको पता है कि ठीक है यार, इट इज जब तक है, जब नहीं होगी तब चेंज हो जाएगा? क्योंकि आप ना जिन सिनेरियो से गुजरते हैं उसके हिसाब से आपकी चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर डेफिनेटली। मैं आपसे यही सवाल 2020 में पूछता तो शायद आपका जवाब बहुत अलग होता। यू हैव सीन द या स्ट्रगल ऑफ नॉट गेटिंग अ जॉब, you have seen the struggle of getting a job but not the one that you like. You've seen the struggle of getting a dream job but getting layoff, ठीक है। या मेरे ख्याल से एक बंदा जो 50 साल साल की जिंदगी में देखता है वो 3-4 साल में देख चुका हाँ है। डेफिनेटली ऐसे ही है। राइट नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट माइंडसेट डू यू हैव, व्हाट डू यू थिंक यार ये सही तरीका है आप चीजों को सोचने का? लोगों को इस तरीके से अगर आप अभी सोचते हैं, अगर आप 4 साल पहले सोचते हैं शायद आप और अच्छी जगह होती, या व्हाट्स योर माइंडसेट इज ऑल अबाउट राइट नाउ?
अच्छा, so basically, over time मैं आपको बताऊं, there has been this paradigm shift as well जो मैंने नोटिस किया है कि आज से पहले आप ये 3-4 महीने के बाद काम करने के बाद किसी न्यू जगह पे जाके अपनी सीवी एचआर के आगे रखते थे ना, तो वो कहता था यार ये क्या है, मतलब आपने इतने टाइम क्यों काम किया। लेकिन अब I have actually seen this change in even well-renowned organizations. When you go to them with an experience of, let's suppose, a year in a company, and you go to them and वो आपसे generally ये सवाल किया जाता है कि यार why do you need this job, या आप Hmm. अपनी current job switch क्यों करना चाह रहे हो। एंड अब उसको एज उस इंसान को एज अ जॉब हॉपर नहीं देखा जाता। मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज अब इसकी यू कैन से एक्सेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी आ चुकी है कि पीपल डू अंडरस्टैंड कि यार अगर एक बंदा 1 साल के बाद जॉब बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है या ऑर्गेनाइजेशन को ने उस बंदे को सूटेबल इनफ नहीं समझा। सिंपली फॉर ग्रोथ भी आप ये कर सकते हो। मैं अगर एक जॉब में हूँ, 1 साल हो गया, आई डोंट सी माई सेल्फ गोइंग एनी वेयर, मेरी कोई प्रमोशन मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, और जो काम मैं कर रही हूँ मैं सिंपली बस वही काम रोज फॉर गुड 365 डेज करती जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वहीं टिक के रहना है। मैं कहीं और जाऊंगी तो यार वो मुझे क्वेश्चन करेंगे कि आप यहाँ क्यों आ गई हो यार, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। तो यहाँ 1 साल ही हुआ है, वाई आर यू शिफ्टिंग योर जॉब। सो दिस इज एन एक्चुअल रीजन कि आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए स्विच कर सकते हो। And अगर आपको वो रिक्वायर्ड ग्रोथ वहां नहीं मिल रही है जो कहीं और से मिल सकती है, तो आपका टाइम इज मनी। आप अपनी लाइफ का ये टाइम कहीं पे बैठे हुए इतना वेस्ट नहीं कर सकते हो कि कि यार आज 1 साल पूरा हो गया, कल 2-3 साल बाद भी मैंने यहाँ पे इसी पॉइंट पे स्टेगनेंट रहना है। सो टाइम इज मनी, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। And आज थैंकफुली एचआर डिपार्टमेंट्स में भी मैंने ये देखा है, ये एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है कि इफ दे सी अ पर्सन फॉर इंस्टेंस स्विचिंग अ जॉब आफ्टर अ ईयर और टू, सो दे डू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यार मे बी द पर्सन इज सो केपेबल इनफ कि उसको दूसरी जगहों से बेटर ऑफर्स भी आती हैं। एंड इसका ग्रोथ का जो ट्रैजेक्टरी ऑफ देयर ग्रोथ है वो इतनी अमेजिंगली जा रही है कि इट डजेंट मैटर कि इसने 1 साल में जॉब स्विच कर लिया, 2 साल में, जरूरी नहीं है कि वो 5-6 साल वहां गुजार के ही आए। तो आज लोग इस चीज पर आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन नहीं भी करेंगे। और इवन अगर क्वेश्चन करते हैं तो यू कैन बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड टेल देम कि भाई आई हैव द राइट टू लुक आफ्टर माई ग्रोथ। और अगर मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहीं एल्सवेयर और बेटर ऑफर हो रही हैं, तो मैं इट्स अबाउट टाइम कि मैं अपने लिए भी सोचूंगा। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज अपने बारे में सोचती हैं, आपको अपने बारे में सोचना होता है। यू हैव टू बी अ बिट सेल्फिश इन दैट रिगार्ड। सो ये एक चीज है जो मैंने ये पैराडाइम शिफ्ट देखी है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग अप्रिशिएटिव इनफ एज वेल कि ये चेंज अब आ रहा है। अभी भी पूरी तरह से नहीं आया आई वुड से। अभी भी फर्म्स में आपसे सवाल किया जाता है कि यार इतनी जल्दी आप स्विच करने का क्यों सोच रहे हो, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये चेंज आ चुका है। Fair enough. I Yeah. think we have discussed very good pointers. Manahil, your overall experience is like a roller coaster, and I'm happy that uh, till then you are still working really hard and Yeah. try to like make out your way in a different ways. क्योंकि बहुत कम Yeah. ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से बहुत मसलों में पड़ जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं यार हम एक ही फील्ड में रहेंगे, हम दूसरी फील्ड में नहीं Hmm. जाएंगे। they Hmm. wanted to they don't want to explore it. So yeah, कभी Hmm. कभार people usually think कि we did some degree in some field and we'll stick to that, but Hmm. you're doing a very good job. We have discussed very good pointers, and I personally believe that people will get an idea कि यार okay fine, if Manile is doing this, they can also work on that. They can switch the job, they can work hard, they can be very Yeah, passionate about it. I'm sorry to cut you off, but there's nothing wrong in exploring. Like, आपको भी एक जिंदगी मिली है, दूसरों को भी एक मिली है, आप कोई दूसरा दूसरे लाइफ टाइम में दोबारा नहीं आओगे ये देखने के लिए कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जिसपे आई एम गुड एट, या विच एक्साइट्स मी, विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी। सो आई थिंक it's completely fine if you're exploring, if you're looking out for yourself, and throughout the process आप in the end कुछ ना कुछ learn ही कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि you are just wasting your time and doing nothing. And currently, at the point I am in life, I think I can just look back and reflect upon all the uh, the previous experiences that I've had, and I can only say that I've become better with every passing day and every passing night. Abhi, the kind of job I'm doing, I'm pretty happy in it, and I think now that I've been in the same field for the previous 2 years,
अब मुझे मुझे आज कोई पूछेगा कि क्या मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाहूंगी, सो आई वुड बी लाइक नो, बिकॉज आई थिंक आई हैव गॉटन टू दी पॉइंट वेयर आई हैव एक्चुअली एक ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में अब कि मैं कह सकती हूँ कि यार हाँ, फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years भी मैं इसी फील्ड में रह के अपनी एक्सपर्टीज को फर्दर एनहेंस करूंगी, पॉलिश करूंगी, एंड मैं इसी में आगे ग्रोथ भी देखना चाहूंगी. Fair enough. Thank you so much, या Munail. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. I'm pretty much sure people will learn a lot of good things. And if they wanted to reach out, likewise, Umair, likewise. if they wanted to reach out, they can reach out to you on their LinkedIn. And I'm pretty much sure you will be available Definitely, for them to definitely. help them. So thank you so much for your time, Munail. Thank you so much, Umair. It was great having this conversation with you. And once again, I'd like to thank you for having me.